اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بیوی اور کنیز کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون، اور فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں جو اوپر بیان کی گئی، اوپر ذکر کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ صفت بھی ہو کہ اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوں، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنے والے ہوں، خیانت نہ کریں اور عہد کی خلاف ورزی نہ کریں، یعنی بدعہدی نہ کریں۔ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک امانت کا تحفظ اور دوسرے عہد کی پابندی۔ اس آیت میں در حقیقت اس بات کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ دین اسلام کا مطالبہ صرف عبادات ادا کر کے پورا نہیں ہوتا کہ عبادت ادا کرنے، نماز پڑھ لی جائے، رمضان کے روزے رکھ لیے جائیں، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، صرف ان سے دین کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ بھی دین کے اہم کام ہے اور دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے جو کہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر میں جو دو باتیں بیان فرما رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق العباد سے جو تعلقات رکھتی ہیں وہ چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دین کے جتنے بھی امور آتے ہیں دین کے کام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نماز میں دین کے کسی کام میں کوتاہی کی ہے ہم نے، اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس کو ادا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حقوق العباد اللہ توبہ سے بھی معاف نہیں فرمائیں گے، حقوق اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کتابوں کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، ایک کتاب لکھی آپ نے نام سنا ہوگا، عربی کی کتاب ہے، علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہدایہ، یہ جو ہدایہ کتاب ہے یہ 4 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ کتنی جلدوں کے اندر؟ 4 جلدوں کے اندر موجود ہیں۔ پہلی جلد کے اندر اس میں حقوق العباد کی تعلیم دی گئی ہے، اور بقیہ 3 جلدیں جو ہیں یعنی کہ تقریباً یہ سمجھیے گا کام سے 600 صفحات کی کتاب ہوگی عربی کے اندر، اس میں بقیہ 3 جلدوں میں حقوق العباد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کتنا اہم ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتانا مقصود سمجھتے ہیں کہ جب حقوق اللہ کو اگر ہم دیکھیں تو حقوق اللہ ایک حصے میں تقسیم ہو چکا ہے، اور حقوق العباد 4 میں سے 3 حصوں میں حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بڑی کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں۔ دین کا تمام مدار اسلامی تعلیمات کا اور اسلامی احکام کو جو جمع کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں جمع کیا ہے، اس کتاب یعنی ہدایہ کے اندر۔ اور اس کیسے پتہ چلے گا؟ اس کتاب سے پتہ چلے گا جس کو ہم کہتے ہیں فقہ کی تعلیم، اور فقہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوگا کہ کون سی چیز اس سے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا کام حرام ہے، کون سا حلال ہے، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، اور ان کو 3 جلدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آج ہم بڑی سنگینی کا ایک جرم یہ کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو یہ معلوم بھی نہیں رہتا کہ ہم نے فلاں بندے کا حق ضائع کر دیا، یہ سے اس کو بھول جاتے ہیں۔ معلوم کیوں نہیں رہتا؟ معلوم ہی نہیں رہتا کہ ہمیں اس کی فکر نہیں، توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کسی عبادت میں آپ نے کوتاہی کی ہے، اگر کسی عبادت کو چھوڑ دیا ہے یا کوئی آپ نے گناہ انجام دے دیا ہے اور ایسا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور کوئی بندہ ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے، اس کو توفیق مل جاتی ہے، تو وہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے گا، اور توبہ کرنے کے بعد یہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر اللہ ذنبی واتوب الیہ، کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیجیے
दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देंगे, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह माफ फरमा देंगे। दूसरी जगह हदीस में इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जिस बंदे ने गुनाहों से तौबा कर ली, जिस बंदे ने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को खत्म फरमा देते। वो खत्म ही नहीं फरमाते, बल्कि आगे लिखा है कि उलमा ने इस किताब के अंदर लिखा है कि गुनाहों को नामे आमाल से मिटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यानी जब इंसान गुनाह से अपने तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को नामे आमाल से भी खत्म फरमा देते हैं, नामे आमाल से भी धो देते हैं। लेकिन आइए आप अब हुकूकुल इबाद की तरफ, तो मालूम होगा अगर किसी ने हक तलफी की है किसी बंदे की, मिसाल के तौर पर किसी पर नाजायज उसको सताया गया, उसको जुल्म किया गया, उसको मारा गया। अब आप याद रखिएगा, आप सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़िएगा, सजदे में पड़े रहिएगा, अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी, अपनी जिस्म की तमाम ताकत को खर्च कर लीजिएगा, रोजा रखिएगा, इशराक पढ़िएगा, अव्वाबीन पढ़िएगा, चाश्त पढ़िएगा, तहज्जुद पढ़िएगा, हर नमाज को पूरा कीजिएगा, सदकात और खैरात कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, आप अल्लाह से कितना ही कहें अल्लाह माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का मामला नहीं है, ये उस बंदे का मामला है जिस बंदे पर आपने जुल्म किया, जिस बंदे को आपने मारा। अब ये हक तलफी हुई, और हक तलफी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तौबा से चाहे आप कितनी कोशिश कर लें या कितनी भी सिफारिशें लगा लें, वहां तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा कबूल उस बंदे से होगी जिस बंदे को आपने सताया है, जिस बंदे को आपने नाहक मारा है, जिसका नाजायज माल आप खा गए हैं, हड़प कर बैठ गए हैं। जब आप उससे जाकर मांगेंगे और उससे कहेंगे भाई तुम्हारा ये माल था, तुम्हारी ये अमानत थी, आप अपने पास रख लीजिएगा, जैसे मैंने ली थी, मैं इसको अपने आप को जहन्नम में जाना नहीं चाहता। अगर इस बंदे ने तौबा कर ली है, उससे मांग लिया हो, उसने जाकर कह दिया है, तो ये तो सूरत हो सकती है माफी की। इसके अलावा आप पूरी जिंदगी अपनी नमाजों में गुजार दीजिए, अल्लाह की इबादत में गुजारिए, लेकिन एक बंदे का हक अगर अल्लाह ताला भी दिलवाना चाहे तो अल्लाह ताला के लिए दिला दे। मालूम यह होता है कि ये इतना बड़ा अहम फरीजा है जिसको उम्मत का तकरीबन 99% वो तबका है जो बिल्कुल भुलाए बैठा है। 1% भी अगर निकले तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, ये भी मैंने बड़ी बात कह दी। मालूम ये होता है कि हुकूकुल इबाद पर हमारा ध्यान ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं मुफलिस कौन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं सहाबी से मुफलिस कौन है। आपके और मेरे जहन में, मेरे दिमाग के अंदर ये बात आ सकती है मुफलिस वो है जिस पर पैसा ना हो, जिस पर माल ना हो, जिस पर दौलत ना हो, जिस पर जायदाद ना हो, जिस पर मकान ना हो, जिस पर जमीन ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं मुफलिस वो नहीं है। उस जमाने के अंदर दीनार और दिरहम होते थे, सोना चांदी होती थी, उसके दीनार और दिरहम होते थे। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुफलिस वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है। पैसे तो हो सकता है एक वक्त आए, आइंदा कल उसके पास पैसे आ जाए, माल आ जाए, जायदाद आ जाए। मुफलिस वो नहीं है, गरीब वो नहीं है, फकीर वो नहीं है, बल्कि मुफलिस और फकीर वो इंसान है जिसके पास में क्या हो, जिसके पास में नेकियां हो, जिसके पास में नेकियां हो, नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, तमाम अल्लाह की इबादतें की है उसने,
तमाम अल्लाह की इबादतें की हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क़यामत के मैदान में जब ये बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़ा होगा कि अपनी इबादतों की अंबार लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, इसके पास में नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, सदक़ात भी होंगे, खैरात भी होंगे, हर चीज मौजूद होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन मालूम होगा कि इसने बेशुमार हुकूक बंदों के दबा रखे थे, बंदों के मार रखे थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब ये जमा होगा तो तमाम अपने हुकूक लेने वाले हाजिर होंगे, इसको भी हाजिर किया जाएगा जिसने हुकूक मार रखे थे। तमाम बंदों को जमा कर लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, सब अल्लाह की बारगाह में आ जाएंगे और आकर अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कि इसने हमारे हुकूक दबा रखे, इसने हमारा माल कब्जे में कर रखा है, इसने हमें जानी नुकसान पहुंचाया है, इसने हमारे पैसे लूट लिए, इसने हमारी जान पर हमला कर दिया। बहरहाल गीबत कर दी, कई चीजें इसमें लिखी हैं, गीबत कर दी, चुगलखोरी कर दी, हमारे साथ में अमानत में खयानत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे सारा मजमा मौजूद होगा और एक ही वो लोग वो इंसान होगा जिसके पास में नेकियों के अंबार होंगे, जिसके पास में हर इबादत मौजूद होगी, एक इबादत भी इसने खत्म नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला की हर इबादत को अपनी पूरी जिंदगी में अंजाम दिया है, उस पर अमल किया है। लेकिन बारगाह रब्बुल इज्जत के अंदर जब मालूम होगा कि इसमें बेशुमार हक तलफियां कर रखी हैं, सब लोग मौजूद हैं अपने हुकूक लेने के लिए तैयार, मेरे भाइयों वहां की करेंसी के अंदर दीनार और दिरहम नहीं चलेंगे, वहां की करेंसी के अंदर पैसा नहीं चलेगा, वहां की करेंसी तो नेक अमाल पर होगी, वहां तो अमल को दिलवाया जाएगा। इन पैसों के बदले में, इन दिनार के बदले में, इन दिरहम के बदले में वहां तो अमल दिलवाए जाएंगे। ये जो नेकी लेकर गया है अम्मार, ढेर एक नेकियों का, अल्लाह तबारक व तआला इस नेकियों को उन हक तलफी करने वालों की, हक तलफी वालों को दिलवाएंगे कि इस बंदे की नेकी। लिहाजा मालूम होगा कि जब सारे बंदे मौजूद होंगे, एक बंदा आएगा, वो मेरे भाइयों इसके नमाज को लेकर चला जाएगा, दूसरा आएगा वो इसके रोजे को लेकर चला जाएगा, तीसरा आएगा इसके सदक़ात खैरात ज़कात को लेकर चला जाएगा और चौथा आएगा वो इसके हज को लेकर चला जाएगा। और जब पांचवा बंदा हाजिर होगा वो उसको भी ले जाएगा जो सुबह से शाम तक तस्बीह गानों पर गिनता था, अपने हाथों से तस्बीह गिनता था, जिक्र अज़कार करता था, अब वो भी पांचवा बंदा लेकर चला जाएगा। मालूम होगा नतीजा ये निकलेगा कि जितनी नेकियां वो लेकर आया था, सारी नेकियां ये हक तलफी करने वाले जो बनते हैं, जिनकी इसने हक तलफी की थी, इनको दे दी जाएगी। ये पांचों की पांचों सारी इबादत में शामिल हो जाती है, सारी नेकियां इन लोगों को दे दी जाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों आगे सुनिएगा, और भी मजमा होगा, जो मजमा मौजूद होगा उनमें से अब भी कुछ बंदे ऐसे होंगे वो कहेंगे अल्लाह ताला हमारे भी तो हक है, हमारे भी तो मिलवाइए। अब क्या होगा, नेकियां भी खत्म हो गई इसकी, अब इसके खाते में सिर्फ क्या बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ नहीं, सिर्फ अकेले इसकी जात बची हुई है। मालूम होता है कि अपने बचाव के लिए, अपने हटने के लिए, इस चीज से निजात मिलने के लिए कोई सामान इसके पास मुहैया नहीं होगा। आखिर में देखिए जब और बंदे न रह जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह ताला इसने हमारे हक भी तो दबाए हैं, हमारे भी दिलवाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि सिर्फ एक सूरत बाकी है, इसकी एक शक्ल बाकी है, और वो शक्ल ये है कि इसके गुनाह जो हैं, यानी तुम्हारे जो गुनाह हैं वो इसके ऊपर डाल दिए जाए, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। अब आप ये सोचिएगा, गौर कीजिएगा, ये बंदा जो नेकियों के अंबार लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से तमाम मजमे के सामने खड़ा है, तमाम हुकूक वाले अपने हुकूक मांग रहे हैं, ये नेकियां लेकर हाजिर हुआ था, ये अपने अमाल अच्छे लेकर हाजिर हुआ था। लेकिन मेरे भाइयों अब लेकर क्या जा रहा है,
इस बारगाह रब्बुल इज्जत से, और यहाँ पर फैसला इंसाफ का होगा, हक का फैसला होगा, तराजू हक की कायम होगी। मेरे भाइयों, इस वजह से हमें अपने अपने गिरबानों में झांक कर देखना चाहिए कि हम नमाजें तो पढ़ते हैं, रोजे तो रखते हैं, हर इबादत करते हैं, बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। 99% बंदे तो वो हैं जो इल्ला माशाअल्लाह कभी पढ़ ली कभी न पढ़ी, किसी ने 1 टाइम की पढ़ी 2 की छोड़ दी, किसी ने 2 की पढ़ी 3 की छोड़ दी, किसी ने 3 की गायब कर दी, किसी ने 4 की गायब कर दी, और कोई तो सारी के सारी गा गया। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जुम्मा जुम्मा जो पढ़ते थे वो भी गायब हो गई, और बहुत से ऐसे बंदे भी हैं जिनको ईद की नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं होती। मालूम ये होता है मेरे भाइयों, अगर हमारे आमाल इतने होंगे, एक वो बंदा है, इस बात से सबक लेने की जरूरत है जिस बंदे के आमाल नामे में नेकियों के अलावा कुछ है ही नहीं, वो बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो उसके पास में नेकियां बचती नहीं, और बल्कि और बंदों के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। अब मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा नमाजी हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ, अवामीन भी पढ़ता हूँ, चाश्त भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, 5 फर्ज नमाजें भी पढ़ता हूँ, खैरात और सदक़ात भी करता हूँ। क्या मुझे ये यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके किसी बंदे के अगर हक है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा? मेरे भाइयों, इससे आप नहीं बच पाएंगे। जितना मजमा भी है ये ऐद कर कर उठे और ये सोच कि आज से जो हक तलबी की कर दी, लेकिन अब जो आइंदा जिंदगी शुरू हो रही है, अगर हमें मालूम है किसी बंदे का हक हमने ज़ाय किया है, उससे माफी मांगे जाके, उससे हक तलबी को खत्म करवाए, उससे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उससे माफ करवा ले, अगर वो माफ कर दे तो मेरे भाइयों नजात है, कामयाबी है। वरना न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न ज़कात कबूल है, कोई इबादत कबूल नहीं है जब तुमने अल्लाह के बंदों की मेरे भाइयों इबादत का हक तलबी की है, अल्लाह के बंदों के माल की हक तलबी की है, पैसों की हक तलबी की है, तो मेरे भाइयों कानून ये होता है अल्लाह भी माफ करने वाला नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि जो बंदे ये सोचते हैं कि आइंदा पढ़ लेंगे, आइंदा अदा कर देंगे, ये आइंदा कल किसी का नहीं आया, ये जो है ना कल से पढ़ूंगा और परसों से पढ़ूंगा, किसी का नहीं आया, अभी से पढ़ूंगा, अब से ही नमाज पढ़ूंगा, अब से ही इन बातों पर अमल करूंगा जो बातें कही जा रही हैं। दीन की बातें छोटी छोटी होती हैं, हम ये सोचकर कि ये तो छोटा सा हक है, ये छोटा नहीं है। मैंने जैसा आपको तफसील बताई कि अल्लाह की बारगाह के अंदर ये नेकियां कम पड़ जाएंगी, बुराइयां आपके ऊपर डाल दी जाएंगी, गुनाह आपके ऊपर डाल दी जाएंगे, आप हक्का बक्का रह जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों की हक तलबी की है उनके हक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक आपकी इताअत करते हुए, आपकी इत्तिबा करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।